Hello, welcome to all of you coming to this video testing of hypothesis and confidence interval for population mean z-test and t-test. Today I discuss about testing of hypothesis, confidence interval and z-test and t-test. First of all, we introduce branches of statistics. Statistics, descriptive statistics and inferential statistics. Two branches of statistics. ये descriptive strategy, organization, summarization and display of data into table, graphs and summary numbers such. But inferential statistics is a branch of statistics in which we draw inference about population parameter for, using information from samples. Descriptive statistics only describe data, but inferential statistics describe inference about population parameters. Clear? Next, we further two branches of statistical inference, estimation of hypotheses and statistical inference in confidence interval, reaching conclusions about characteristics of an entire population using the information contained in a sample. Sample statistics, population parameters. सैंपल स्टेटिस्टिक्स से हमने जो इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए हम एक्सप्लेन करते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स population parameter are the fixed value true quantity fixed value true quantity and unknown value. I draw inference about population parameters fixed true and known value using the information of sample statistics. हाइपोथेसिस का फर्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. इस तरह हम तीन एग्जांपल लेंगे कि हमने कैसे फॉर्मुलेट करना है हाइपोथेसिस. दूसरा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और थर्ड स्टेप है यूजिंग फार्मूला रूल टू फाइंड द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी और टी. फोर ड्रा सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन कैलकुलेट नेसेसिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सैंपल. ये पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किए हैं. इसके स्टेप्स 6 स्टेप्स हैं टोटल. फोर्थ स्टेप है जी और टी टेस्ट हमने कब लगाना है, ये थर्ड स्टेप है. और 5 स्टेप है टेकिंग टेबल वैल्यू फ्रॉम टेबल्स जी और टी एंड सेटिंग अप डिसीजन रूल. 5 क्या है, सेटिंग अप डिसीजन रूल्स. डिसीजंस क्या होंगे इस टेस्ट की बेस पर. 6 है हमारे पास डिसीजंस. फर्स्ट में हमने तीन एग्जांपल ले रहे हैं. फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. Consider a particular automobile that currently attains an average fuel efficiency of 24 km per hour. Test the hypothesis whether the new model of the automobile is more economical in fuel efficiency comparatively. हमने hypothesis करना है क्या, fuel efficiency comparatively. Automobile is more economically fuel efficiency comparatively. Efficiency क्या है. Test the hypothesis whether a new model of automobile is more economical in fuel efficiency. Fuel efficiency 24 किलोमीटर लीटर. एवरेज क्या हमारे पास, इससे ज्यादा जो न्यू आएगी क्या होगा, म्यू इज ग्रेटर देन एवरेज. म्यू होता है पॉपुलेशन के रिलेटेड हमने बताना होता है तो क्या होगा, पॉपुलेशन मीन ग्रेटर देन 24. एवरेज हमारे पास ये, अगर न्यू हम ले रहे हैं उसकी अगर इससे ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं. तीन एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं. It has been found from experience that the mean breaking strength of particular brand of thread is 9.63. Our researcher may wish to test. अब क्या उसने विश करना, टेस्ट based on recent sample that whether the treatment has become inferior. क्या, based on recent sample that whether the treatment has become inferior. इसके लिए क्या करेंगे, जो पीछे सैंपल लिया उसकी बेस पर जो ट्रीटेड है बिकम्स, ये क्या होगा, मीन लेस देन 9.63. थ्रेड इसको ए आ रहा है तो इससे जो कम होगा तो क्या होगा, जो हमने न्यू ट्रीटमेंट लगाया वो बेटर है पहले ट्रीटमेंट से.
Third is test the hypothesis that the average statistics marks of student in your class is 45, यानी कि जो आपकी क्लास के स्टूडेंट हैं उनके एवरेज मार्क्स क्या हैं, मीन इज इक्वल टू 45। हमने इधर करना क्या है कि हम जो भी स्टेटमेंट में हमें गिवन होता है वो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है। इधर हमें n इज इक्वल टू 90 दिया हुआ है। ये जो थर्ड एग्जांपल है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 90 हैं, उसमें से एवरेज क्या है उनकी 45 है। 45 उसकी एवरेज है। अब ये फर्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर हमने इसको लिख लिया म्यू ग्रेटर देन 24, ये हमारे पास होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हमें जो स्टेटमेंट में गिवन होता है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, इसका कम्प्लीमेंट्री हमने लिखना होता है। कम्प्लीमेंट्री इसका क्या होगा, अगर हम इसको क्या लिख दें, म्यू लेस इज इक्वल टू 24, ये कम्प्लीमेंट होगा हमेशा नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का कम्प्लीमेंट्री हाइपोथेसिस होगा। ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। फर्स्ट को हम क्या लिखते हैं, एच नॉट यानी कि म्यू अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस एंड सेकंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दोनों कंप्लीट। इधर से हमें क्या पता, म्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 24, ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हाइपोथेसिस बन गए। म्यू ग्रेटर देन, इसी तरह ये नीचे वाले का हम क्या करेंगे, म्यू अगर लेस है तो क्या होगा, म्यू ग्रेटर इक्वल टू 9.63, तो क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट हो गए। अगर एक लेस है तो दूसरा क्या है, उससे हमेशा ग्रेटर इक्वल। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जो नल हाइपोथेसिस में इक्वालिटी के साइंस होते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इक्वालिटीज के साइन नहीं होते। हमें जो स्टेटमेंट में गिवन होता है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, इसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसकी बेस पर हमने ड्रा करना, ये हमारे पास क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू 45, नॉट इज इक्वल टू 45, ये क्या होगा हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्लियर हो गया। अब इसकी बेस पर हमने देखना था, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बेस पर हमने देखना कि हमारे पास हाइपोथेसिस राइट टेल है, लेफ्ट टेल है या टू टेल है। अब इसकी बेस पर हम चेक करते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, राइट टेल, क्योंकि म्यू अल्टरनेटिव में क्या है, राइट ग्रेटर है 24, अगर तो एवरेज वैल्यू ग्रेटर देन होगी 24 से तो क्या होगा हमारे पास अल्टरनेटिव में, अगर म्यू एवरेज ग्रेटर देन होगी तो राइट टेल, अगर लेस देन होगा मीन तो क्या होगा, लेफ्ट टेल, अगर नॉट इक्वल टू होगा तो टू टेल टेस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया इस कंसेप्ट से कि कैसे हमने फॉर्मुलेट करने हैं हाइपोथेसिस। फर्स्ट स्टेप को हमने हाइपोथेसिस में कैसे इसको हमने फॉर्मुलेट करना है हाइपोथेसिस को। क्लियर, अगर लेस होगा तो लेफ्ट, अगर मीन इज नॉट इक्वल टू होगा तो टू टेल, अगर ग्रेटर होगा तो राइट टेल। नेक्स्ट मूव करते हैं, नल हाइपोथेसिस एच नॉट इज एन अजम्पशन अबाउट पॉपुलेशन पैटर्न। ये किसके में, पॉपुलेशन पैटर्न टू बी चैलेंज, जिसको हम चैलेंज करते हैं। ये तीनों तीनों हमने लिख लिए हैं, जो नल हाइपोथेसिस हमने और उसके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी लिख लिए हैं जो जो बने हैं। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सम टर्मिनोलॉजीज, और इसकी सम टर्मिनोलॉजीज को हमने एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या होगा, ये तीनों हमने लिखे हुए हैं, तो तीनों के साथ क्या करेंगे, ये होगा लेफ्ट टेल क्योंकि एवरेज, ये राइट टेल है, ये क्या है, टू टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट। इधर अब एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है, डिसीजन यूजिंग, हमने एच नॉट इज ट्रू, एच नॉट इज फॉल्स। एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है, डिसीजन यूजिंग सैंपल, हम सैंपल यूज करके कौन से डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, एच नॉट इज ट्रू, मे और मे नॉट, ट्रू और फॉल्स, ये हमने डिसीजन एज्यूम कर लेना होता है। तो अगर हमने डिसीजन इनकी बेस सैंपल लेकर हमने किया, रिजेक्ट एच नॉट कर देते हैं, जब ये चीज ट्रू तो देन हमारे पास क्या एक होगा, रिजेक्ट एच नॉट। सेकंड क्या होगा, डोंट रिजेक्ट एच नॉट। एक्चुअल सिचुएशन ये है, यानी एच नॉट इज ट्रू। टाइप फर्स्ट कब होगी, जब हमारे पास क्या होगा, रिजेक्ट एच नॉट होगा जब एच नॉट इज ट्रू, ये होगी हमारे पास टाइप फर्स्ट एरर।
डोंट रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, ये क्या होगी, टाइप सेकंड एरर। डोंट रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, ये एक्चुअली करेक्ट डिसीजन, और ये करेक्ट डिसीजन है, ठीक है। जब ये ट्रू था तो हमने इसको करेक्ट लेना था, हमने उसको नहीं लिया। Probability of committing a type first error is called the level of significance or size of test। क्या है, probability of committing a type first error is called the level of इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अल्फा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। by alpha is equal to 5%, इससे क्या मुराद है, we mean that there are 5 chances in 100 of incorrectly rejecting a true null hypothesis। 1 minus alpha is called the level of confidence or confidence coefficient। 1 minus alpha is the called the level of confidence or coefficient। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप सेकंड एरर के लिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिटिंग अ टाइप सेकंड एरर 1 माइनस बीटा के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, इज कॉल्ड द पावर ऑफ द टेस्ट। फार्मूला रूल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमने कौन सा फार्मूला कौन सा रूल कब लगाना है, जी टेस्ट कब लगेगा, टी टेस्ट कब लगेगा, इसके रिलेटेड ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमें इसका मेथड सीखना होगा, हमने कैसे इसको करना है। सबसे पहले ये क्या होगा हमारे पास, एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार ओवर पॉपुलेशन वेरिएंस सैंपल की बेस पर जो हमने फाइंड किया हुआ है, ये क्या हो गया, मीन, जो हमने सैंपल की बेस पर इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन मीन, ये क्या हो गया, पॉपुलेशन वेरिएंस बेस्ड ऑन सैंपल, ये हम इज इक्वल टू म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू पॉपुलेशन, ये क्या हो गया, पॉपुलेशन वेरिएंस इज इक्वल टू पॉपुलेशन वेरिएंस स्क्वायर ओवर एन, ये सैंपल का था वेरिएंस। अब एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर ओवर एन क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट, ये क्या है, टोटल जी टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये विद रिप्लेसमेंट के साथ ये फार्मूला आ रहा था जो पहला हमने किया सिग्मा स्क्वायर ओवर एन वाला, ये लगा देंगे तो क्या होगा, अगर हमारे पास तो पॉपुलेशन वेरिएंस जो है प्रेजेंट है तो फिर हम क्या लगाएंगे, जी टेस्ट। अगर हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन, इफ पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन यानी कि सिग्मा स्क्वायर इज अननोन, देन हम क्या करेंगे, एक तो हम ले लेंगे सैंपल वेरिएंस ले लेंगे, इसके बाद हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे एस स्क्वायर ओवर एन, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर एन ग्रेटर देन 30 होगा तो जी टेस्ट लगेगा, अगर एन लेस देन 30 होगा तो टी टेस्ट लगेगा विद डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल में से माइनस वन कर देंगे, इसकी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा जितने हम सैंपल ले रहे हैं। अगर लेस देन 30 सैंपल्स होंगे तो टी टेस्ट लगेगा, अगर ग्रेटर होंगे तो जी टेस्ट लगेगा। ये किस कंडीशन में, इफ पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन देन ये फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, और ग्रेटर देन 30 होगा तो जी टेस्ट, अगर लेस देन 30 होगा तो टी टेस्ट लगेगा, अगर लेस देन 30 होगा तो टी टेस्ट लगेगा। अगर हमारे पास वेरिएंस मौजूद है तो फिर तो डेफिनेटली जी टेस्ट लगेगा। फिर क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में ड्राइविंग सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन, ड्राइविंग अ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन एंड कैलकुलेटिंग क्राइटेरिया सर्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। इन दिस केस वी विल लुकिंग फॉर सैंपल मीन एंड सैंपल वेरिएंस। हम क्या करेंगे, सैंपल की बेस पर उसका सैंपल मीन निकालेंगे और सैंपल वेरिएंस निकालेंगे। फिर हमने क्या करना है, जी टेस्ट या टी टेस्ट दोनों में से कौन सा जो टेस्ट है वो लगाएंगे। अब टू टेल टेस्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। टू टेल टेस्ट क्योंकि तीन टाइप्स हैं टेस्ट की, एक राइट टेल होता है, एक लेफ्ट टेल होता है। अब टू टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। Here we explain about two-tailed test. When two-tailed test alpha is equal to 0.05, यानी कि अगर हम 5% अल्फा लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली पहले डिवाइड कर लेंगे अल्फा बाई 2 को। अल्फा क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगी 0.025। अब ये मीन हमारे पास जीरो होता है, इसको दोनों साइड पे 0.5 वैल्यू है, 0.5, और टोटल कर्व की वैल्यूज क्या हो गई 1, क्योंकि टोटल एरिया अंडर द कर्व 1 होता है। 0.5 मीन इधर लेफ्ट साइड पे, 0.5 राइट साइड पे।
क्लियर। इसके अगर हमने जब अल्फा टू टेल टेस्ट है तो क्या करेंगे, अल्फा की दोनों साइडों पर 2 पर डिवाइड करके उसको दोनों साइडों पर 0.025 लेफ्ट साइड पर भी ले लेंगे और राइट साइड पर भी ले लेंगे। अल्फा बाई 2 की वैल्यू दोनों साइड पे लेंगे 0.025, ये राइट साइड पर होगी और ये लेफ्ट साइड पर वैल्यू हमने अल्फा बाई 2 की ले ली। जब टू टेल टेस्ट होगा तो अल्फा को क्या करना, अल्फा बाई 2 पर डिवाइड कर लेना और जो वैल्यू होगी दोनों साइड पे हमने ले लेनी है 0.025 बन रही है, ये राइट साइड पर भी ले ली और लेफ्ट साइड पर भी ले ली। और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इसके अंदर वाला वो क्या है, 1 माइनस अल्फा जी। ये इसके साथ क्या लगा देंगे, माइनस जो लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाले के साथ प्लस का लगाएंगे जी अल्फा बाई 2। जबकि हमारे पास मीन क्या है, 0 है। इसके लेफ्ट साइड पर भी 0.5 है और 0.2, टोटल मिलाकर 1 प्रोबेबिलिटी अंडर द कर्व, टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1 होता है ना, इसलिए ये कह रहे हैं राइट साइड वाली अल्फा बाई 2। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू तो हमारे पास 0.975 वैल्यू आती है जब हम इसकी जी की वैल्यू जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकालते हैं। ये क्या हमारे पास 0.025, इधर भी 0.25 निकल गई, इधर से भी 0.25 निकल गई, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, उसको हमने कैलकुलेटर वैल्यूज में देखा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.975। ये लेफ्ट साइड राइट साइड वाली वैल्यू और लेफ्ट साइड वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0. जब इस राइट साइड वाली वैल्यू को हम निकाला तो बाकी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 0.75। टोटल जो एरिया बाकी रह गया ये रह गया 100 में से 0.975। अब इसको हमने टेबल नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, जब हम जी टेस्ट लगा रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, उधर से एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व उसको देख लेंगे जी टेबल। अब वैल्यू कैसे देखनी है हमने, इसको देखते हैं कैसे हमने वैल्यूज को सर्च करना है। टेबल पर आ गए, ये आपके पास टेबल अवेलेबल होंगे या आपको पेपर में इसकी वैल्यू गिवन होगी, अगर ये वैल्यू हो तो ये इसका एरिया होगा। ये बताया हुआ है ये डायग्राम में भी कैसे ये किया जा रहा है, ये देखें ये एरिया जी की वैल्यू लेस देन ये वैल्यू। अब हम इसको चेक करेंगे ये कहां पर है, वैल्यू कहां फॉल कर रही है, 0.9750 ये वैल्यू थी रिमेनिंग। अब इसको हम देखते हैं कि सामने क्या है 1.9 0.6 1.96 1.96 हमारी वैल्यू क्या आ गई 1.96। इधर 1.96 ऐसा ही लेफ्ट साइड से देखा जाए तो ये माइनस इसके साथ लगा देंगे -1.96। ये जी टेबल वैल्यू को देखने का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको कैसे हमने देखना है। राइट टेल टेस्ट हो तो क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। ये तब हमने जब राइट टेल या लेफ्ट टेल होगा तो हमने कोई वैल्यू भी नहीं इसकी साइड पे ना ही 2 पर डिवाइड करना, सिर्फ अल्फा को रहने देना। इधर हमने 0.05 वैल्यू 5% एक साइड पे ले लेना, राइट साइड है तो राइट साइड पर हम लेंगे, इसमें भी मीन 0 होगा और इसके अराउंड अबाउट 0.5 एरिया इधर 0.5 एरिया इधर। अब राइट टेल है तो 0.05 हमने राइट साइड पर ले ली वैल्यू। क्लियर, ये एरिया हमारे पास क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू के रिजेक्शन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप फर्स्ट एरर, यानी कितने चांसेस हैं गलत डिसीजन लेने के, वो क्या है 0.05। राइट साइड है तो राइट साइड पर हमने ये वैल्यू लगा ली। अब इस बाकी रिमेनिंग हमारे पास क्या हो गया 0.95 वैल्यू आ गई, क्योंकि जब हमने 1 में से इसको 0.5 को निकाला तो 0.95 भी हमारे पास वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1.645। जब हमने इसको टेबलेट वैल्यू में जी अल्फा वाले टेबल में वैल्यू देखी तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.645 1.645। ये वैल्यू हमने जैसे पहले राइट टेल वाले टेबल में देखा था वैसे हमने अब लेफ्ट टेल की बात करते हैं, तब भी हमारे पास अल्फा क्या होगा 0.05। इसमें टू टेल और लेफ्ट टेल और राइट टेल में सिर्फ यही डिफरेंस है, ये लेफ्ट टेल पे आ जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू होगी
तो रिमेनिंग क्या होगी 0.95, जो बाकी हिस्सा रह गया हमारे पास क्या है 0.95, ये 0.05 अल्फा की वैल्यू, रिमेनिंग 1 माइनस अल्फा। क्लियर। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं 0.95 वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू हमने फाइंड की टेबल से, तो हमारे पास हमने टेबल चेक किया तो माइनस की वैल्यू आ गई, जैसे राइट टेल में आई थी, तो डायरेक्ट हमने अल्फा की वैल्यू लगा देनी है -1 -1.645। ये टेबल से आती है वैल्यू, ये गिवन होंगी आपको, या टेबल दिया प्रोवाइड किया जाएगा या फिर ये आपको वैल्यू गिवन होगी। क्लियर होगा। राइट टेल और लेफ्ट टेल और टू टेल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब टू टेल टेस्ट हो तो हमने क्या n इज इक्वल टू 15, अगर n क्या है हमारे पास 15 है, सैंपल साइज क्या है 15, अल्फा इज इक्वल टू 0.05, तब हमने डिवाइड किया अल्फा बाई 2 पर, तो क्या होगा 0.025। टू टेल में हमने 2 पर डिवाइड कर देना, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा n-1 इज इक्वल टू 14, n-1 इज इक्वल टू 14, क्योंकि जब सैंपल 30 से लेस होगा तो हम क्या करेंगे टी टेस्ट लगाएंगे। जब सैंपल हमारे पास ये देखे टी टेस्ट लगाया तो इसका टेबल है स्टूडेंट, टी डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा हम सर्च कर रहे हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है हमारे पास 15 है, तो 14 आ गई 14। इधर से डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे, उधर से अल्फा की वैल्यू देखेंगे, अल्फा क्या है 0.025 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 14, डिग्री ऑफ फ्रीडम 14, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.145। ऐसे हमने ये टेबल वैल्यू ले लेनी है टू टेल टेस्ट के लिए। ये वैल्यू ऐसे हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फा को देखते हुए, ये टेबल आपके पास मौजूद होगा, उधर से आपने देख लेनी है। तो ये वैल्यू दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जैसे हमने जी टेबल देखा ऐसे ही हम टी टेबल की वैल्यू देख रहे हैं। इसमें क्या हमने अल्फा देखना है और क्या देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 है, तो ये दोनों साइडों पे ये वैल्यू हमने निकाल ली। क्लियर हो गया। लेफ्ट टू टेल टेस्ट को कैसे हमने जी टेबल में देखना और टी टेबल में कैसे देखना है। अल्फा की वैल्यू आपको पता हो और डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो, ये क्या होगा टी अल्फा बाई 2, टी अल्फा बाई 2, यानी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और राइट साइड पे क्या करेंगे प्लस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। राइट टेल टेस्ट n is equal to 8, alpha is equal to 0.05, n-1 is equal to 7, तब क्या हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, n में से -1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब टी टेस्ट लगा रहे हैं, जबकि 30 से जब भी कम होगा हमारे पास वेरिएंस नहीं है, तो हमने लगाना है टी टेस्ट है अल्फा 0.05, यानी कि हम लेफ्ट राइट टेल कर रहे हैं टेस्ट को, तो उधर डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है, तो हमने ये वैल्यू लगा दी। अब लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए n इज इक्वल टू 17, यानी कि ये 30 से कम है सैंपल साइज, अल्फा 0.05, n-1 इज इक्वल टू 16। वैल्यू देखेंगे टेबल है, अल्फा वाई की वैल्यू ऊपर दी हुई है 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 16, दोनों जहां पे मैच कर रहे हैं, ये दोनों मैच किया और हमारे पास 1.746 ये वाली वैल्यू आ गई। क्लियर, क्लियर हो गया। दिस वैल्यू लेफ्ट साइड पे जो आई है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, बाकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1 माइनस अल्फा। क्लियर। टी टेबल देखना आ गया, जी टेबल भी देख लिया। अब एग्जांपल के साथ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इट इज claimed that an automobile is driven on the average more than, ये हमारे पास क्या एवरेज, ये मैंने बताया था कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है मोर देन 12,000 miles per year. To test this claim, a random sample of 100 automobiles owners, ये क्या होगा सैंपल साइज जिसको n के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, ask to keep a record 2 miles they travel, ये क्या हो गया सैंपल, ये क्या हो गया हमारे पास हाइपोथेसिस के, यानी कि मोर देन 12,000। क्लियर। 12,000 से ज्यादा हो गया एवरेज, जो म्यू जो पॉपुलेशन मीन हमें दिया हुआ है वो क्या है 12,000 और सैंपल साइज क्या दिया हुआ है 100 एंड एवरेज सैंपल मीन क्या दिया हुआ है, सैंपल मीन गिवन है
और स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें गिवन है और सैंपल मीन भी। हमें इधर से वैल्यू क्या हो गई, सैंपल भी गिवन है, सैंपल मीन भी गिवन है और स्टैंडर्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है। तो तब जब हमें पता है कि सैंपल साइज पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन ना हो तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, पहले तो हम पहला स्टेप लगाएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस में। क्या होगा कि हमने क्या एवरेज ग्रेटर देन 12,000 से एवरेज जो है पॉपुलेशन मीन ग्रेटर देन लेस देन। सेकंड स्टेप में क्या अल्फा हमने फिट कर लिया 0.05। ये स्टेप्स हम कंस्ट्रक्ट करके मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हमने एग्जांपल में कैसे इसको सोल्व करना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज इक्वल टू 0.05 और जी कैलकुलेटेड हम लगाएंगे। जी क्यों लगा रहे हैं, एन क्योंकि 30 से ज्यादा है और पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है, इस वजह से हम जी टेस्ट लगा रहे हैं। अगर 30 से कम होता तो फिर टी टेस्ट लगना था। क्लियर हो गया। जी कैलकुलेटेड एक्स बार माइनस म्यू एस स्क्वायर और एन। अब एक्स की वैल्यू भी हमें गिवन है, उधर हमने बस म्यू के साथ उसको माइनस करना है और इधर क्या है इसकी वैल्यू, तो हमने वैल्यू निकाली इसकी वैल्यू, ये हमारे पास गिवन थी वैल्यू। क्लियर हो गया। इन वैल्यू को पुट किया, एन भी हमारे पास है, तो म्यू क्या हमारे पास 12,000 हमने रखकर इसकी वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया। कैसे किया, एक्स बार 12,500 में से माइनस किया 12,000 को, बाकी वैल्यू को डिवाइड किया स्क्वायर पर और ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हमने कैलकुलेटर के साथ। क्लियर हो गया। ये जी कैलकुलेटेड की वैल्यू आ गई, कैलकुलेशन हो गया। अब डिसीजन कंप्लीट हो गई। डिसीजन रूल क्या है, रिजेक्ट एच नॉट। अब क्या होगा अगर हमारे पास तो है ये राइट टेल, क्योंकि पॉपुलेशन मीन जो है ग्रेटर देन है 12,000 से, तो क्या हो गया ये राइट टेल हो गया। राइट टेल होगा तो हम रिजेक्शन रीजन क्या बनाएंगे, रिजेक्ट एच नॉट इफ जी कैलकुलेटेड ग्रेटर इक्वल टू जी अल्फा। ये हमने वैल्यू निकाली जी टेबल से, तो ये हमारे पास आ रही है 1.645, ये पीछे हमने निकाली हुई है। तो ये क्या है, रिकैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है इक्वल है, तो क्या हमारा डिसीजन है, ये देखें 2.083, ये ग्रेटर वैल्यू है 1.645 से, तो क्या होगा, हम क्या कर देंगे, तो देंगे रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को, नहीं कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और हम कंक्लूड क्या करेंगे कि मीन जो है ग्रेटर देन जो ऑटोमोबाइल ड्राइवर ऑन एवरेज मोर देन क्या है, रिजेक्ट एच नॉट एंड कंक्लूड द क्लेम इज ट्रू। तो जो हम चेक करना चाह रहे थे वो ट्रू हो गया। सेकंड एग्जांपल है, इट हैज बीन फाउंड फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ थ्रेड इज 9.63 नॉट विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.40 नॉर्मल रिसेंटली अ सैंपल ऑफ 36 पीसेस। इधर से हमें क्या गिवन है, एक तो एन दिया हुआ है 36 है, मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ये भी दिया हुआ है, मीन भी दिया हुआ है, पॉपुलेशन मीन। हमने पहले वैल्यू देखनी, हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है वो वैल्यू हमने लिखते जाना है। 8.93 कैन वी कंक्लूड दैट द सेट हैज मोर बिकम इंफीरियर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी दी हुई है, वेरिएंस दिया हुआ है ना हमें। अगर हमें पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो देते हैं उसको पॉपुलेशन वेरिएंस कहते हैं। अगर पॉपुलेशन ये नॉन होगा तो हम जी टेस्ट लगाएंगे। अब सैंपल साइज चाहे छोटा है बड़ा है तो हम क्या करेंगे, जी टेस्ट ही लगाएंगे। सैंपल साइज वैसे भी 30 से बड़ा है तो क्या होगा, हमने चेक करना क्या था, लेस देन, तो पहले इसको किया और ग्रेटर इक्वल टू, ये हमारे पास हाइपोथेसिस हो गया। जी टेस्ट लगा दिया, जी की वैल्यू लगाई और क्या किया हमने, अगर हमें पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है तो क्या उसको हम क्या करेंगे, वैल्यू को डायरेक्ट ये फार्मूला लगाकर अप्लाई कर देंगे। ये फार्मूला समझ आ गई, जब हमारे पास मौजूद ना हो तो तब हम सैंपल लगाते हैं, नहीं तो ये वाला लगा के ये वैल्यू कैलकुलेट की। -3 आ गया। अब देखें क्या हमारे पास डिसीजन रूल किया, जी कैलकुलेटेड लेस देन इज इक्वल टू माइनस जी अल्फा। अगर इससे कम हो जाती है वैल्यू या इसके इक्वल आ जाती है तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट एच नॉट कर देंगे। अब डिसीजन रूल हमारे पास क्या आया, ये लेस है, रिजेक्ट एच नॉट एंड कंक्लूड द थ्रेड्स हैज बिकम इंफीरियर। थ्रेड्स जो क्या है, बिकम्स इंफीरियर हैं थ्रेड। अब एग्जांपल नंबर नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। द एवरेज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड दैट इज पैक्ड इन कैन इन 6 liters sample of 10 cans showed mean amount of pesticide
6.1 लीटर विदाउट इज प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल। सैंपल दिया हुआ है 10 कैन्स, क्या होगा सैंपल साइज दिया हुआ है, दूसरा अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड 6 लीटर विद स्टैंडर्ड डेविएशन 0.25 लीटर। क्या होगा ये टू टेबल टेस्ट होगा, क्या होगा इज प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल नॉट कंट्रोल, ये क्या है न्यू एवरेज नॉट इज इक्वल टू 6, ये पॉपुलेशन वैल्यू दी हुई और नॉट इक्वल टू, ये दोनों अल्टरनेटिव हो गए। अल्फा हमने लिख सेट कर लिया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा इज इक्वल टू 0.05, टी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू, ये फार्मूला लगेगा क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जाहिर बात है एन जो है 10 है 30 से लेस है, तो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू लगा दी हमने, इसको कैलकुलेट किया, एक्स की वैल्यू एक्स मीन जो हमारे पास था उसको माइनस म्यू किया और ये वैल्यू हमारे मौजूद थी, हमने कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू निकाल ली। रिजेक्ट एच नॉट, डिसीजन रूल क्या होगा इफ, हम डिसीजन रूल में क्या करेंगे रिजेक्ट एच नॉट इफ टी कैलकुलेटेड लेस इक्वल टू माइनस टी अल्फा, दोनों रूल, या फिर क्या करेगा टी कैलकुलेटेड ग्रेटर इक्वल टू टी अल्फा बाई 2, ये वैल्यू हमने टेबल से फाइंड कर ली हुई है 2.262, ये क्या है अब टी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है इससे बड़ी है, इनसे बड़ी है 2.262 से बड़ी है नहीं, या फिर हम क्या देखेंगे -2n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, उधर से हमने टेबल की वैल्यू देख ली, हमारे पास क्या है n10, तो 9 वाली वैल्यू में चेक किया तो ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट टेबल से जो मैंने आपको दिखाए हैं, टेबल से आपने वैल्यू निकाल लेनी है, टेबल आपके पास होंगे वैल्यू आपने देख लेनी है, क्या करेंगे रिजल्ट क्या आएगा रिटेन एच नॉट, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी नहीं है इससे, तो रिटेन एच नॉट कर देंगे। कौन आज के लेक्चर में बस यहाँ तक ही हम स्टडी करते हैं, अब कॉन्सेप्ट भी बल्कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कर लेते हैं, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 एस स्क्वायर ओवर एन, ये क्या होगा इस फार्मूला को हम लगाएंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, क्या होगा सैंपल मीन प्लस माइनस अपर लिमिट एक आ जाएगी एक लोअर लिमिट आ जाएगी, जब हम इसको प्लस करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी, लोअर माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, जी अल्फा टू टेल है तो जी अल्फा बाई 2 करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन जो सैंपल की एस स्क्वायर ओवर एन, सैंपल वेरिएंस ओवर एन का स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्टैंडर्ड एरर, तो हमारे पास क्या होगी लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे आएगी और लोअर लिमिट कैसे, लोअर लिमिट अगर हम इसको दोनों को माइनस करेंगे आपस में तो लोअर लिमिट, अगर दोनों को प्लस का साइन बीच में होगा तो अपर लिमिट आ जाएगी कॉन्फिडेंस इंटरवल की। कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला आपको समझ आ गया, जी टेस्ट जो अगर हम जो लगा रहे हैं वो टेस्ट प्लस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एरर एक्स इंटरप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये वैसे आपके टॉपिक में नहीं है तो रहने ही दें, क्या आपने ये कॉन्फिडेंस इंटरवल रहने दे नहीं करते क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पेपर में नहीं है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।